So today we will start a new chapter, that is chapter number 8, triangles and its properties. So we all know that triangle is a figure having 3 sides and 3 angles. Basically triangle are of 3 types. First is isosceles triangle, second one equilateral triangle, and third one is scalene triangle. Isosceles triangle is a triangle in which 2 sides of the triangle are equal. Equilateral triangle is a triangle in which all the 3 sides are of equal length, and scalene triangle is a triangle in which all the sides are of different lengths. Now we will focus on isosceles triangle. So over here triangle ABC is drawn, which is an isosceles triangle. The 2 sides are equal, that is side AB and side AC. These 2 sides are equal. So over here it is given to us in triangle ABC. It is given AB is equals to CS. See the sign. So AB is equals to BC. It is given in the figure. And angle B equals to angle C. So angle B and angle C are called base angles because they are present on the base BC. So B and C are also equal, and angle A is called the vertical angle. So angle A, that is this angle, is called vertical angle. So यहाँ पे basically 2 conclusions हमने point out किए हैं in an isosceles triangle. Let's read it. In a triangle, if 2 sides are equal, then the angles opposite to these sides are also equal. So अगर एक triangle है जिसमें 2 sides equal हैं already, इसका मतलब एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. जैसे कि आपका ए बी इज इक्वल्स टू गिवन है इस फिगर में. यहाँ साइड ए सी का ऑपोजिट एंगल इज बी एंड साइड ए बी का ऑपोजिट एंगल इज सी. सो सिंस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, देयरफॉर दीज 2 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. नेक्स्ट, इफ इन अ ट्राइंगल if 2 angles are equal, then the sides opposite to these angles are equal in length. So ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन का ही रिवर्स है. यहाँ पर बोला जा रहा है अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स, यानी कि एंगल सी का ऑपोजिट साइड इज ए बी एंड एंगल बी का ऑपोजिट साइड इज ए सी, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे. तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन था रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्राइंगल. नाउ वी विल मूव टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. First we will see what an exterior angle means. So over here a figure is drawn, that is triangle ABC, and the side BC, that is the base, is extended to the D. So यहाँ पे BC को हमने D तक बढ़ा दिया है. Now angle A, angle B and angle C, ये जो 3 एंगल्स हैं ना, ये ट्राइंगल के अंदर हैं, इसलिए इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. लेकिन एंगल ए सी डी, दैट इज ये वाला एंगल जो है, ये ट्राइंगल के बाहर है, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. ओके, नाउ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सपोज ट्राइंगल ए बी सी में ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल. सो इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हम लोग को पता लगाना है. अगर आपको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल पता लगाना है तो आपको बहुत इजी सा ट्रिक यूज करना है. दैट इज, नाउ ये जो एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज एंगल ए सी डी, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल सी, दैट इज ये वाला एंगल. सो आप ट्राइंगल ए बी सी के एंगल सी को छोड़ दो और बाकी के जो 2 एंगल्स हैं ना, वो आपके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को छोड़ देंगे, तो बाकी के जो 2 एंगल्स होंगे वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे. नाउ लेट्स रीड व्हाट डज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी स्टेट्स. In a triangle, the exterior angle is equal to the sum of 2 interior opposite angles. So यहाँ पर exterior angle is equal to sum of, यानी कि addition of interior opposite angles. तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे. तो यहाँ पे exterior angle कौन सा है? Angle ACD. So we will write angle ACD is equals to exterior angle equals to sum of interior opposite. So वही interior opposite angles are angle A and angle B. तो इन दोनों को add कर देंगे. So exterior angle property के अकॉर्डिंग हम लोग को ये मिलेगा. Now let us move to worksheet 1. Look at the figure carefully and complete the following statements. यहाँ पर एक फिगर आपको दिया गया है, आप बुक से भी फिगर को देख सकते हो. फर्स्ट नंबर, एंगल बी ए वाई इक्वल्स टू. सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे एंगल बी ए वाई कहाँ है. एंगल बी ए वाई, वाई देखो यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल के बारे में हम लोग को बोला जा रहा है. इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल. ओके, सो दिस, तो यहाँ पे ये जो एंगल बी ए वाई है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो हम लोग का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल बी एंड एंगल सी. हम लोग इस वाले एंगल को छोड़ देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल को, तो एंगल बी एंड एंगल सी हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे. तो यहाँ पे एंगल ए बी सी तो हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंड डैश में क्या होगा? एंगल सी या फिर एंगल ए सी बी. सो वी विल राइट एंगल ए सी बी ओवर हियर. नेक्स्ट, एंगल सी बी जेड. सो सी बी जेड यानी कि ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल. ओके, दिस इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश. सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल बी है, तो एंगल बी को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी के जो 2 एंगल्स है वही हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे, जो कि हम लोग को यहाँ पे लिखना है. सो इसका हम लोग नेमिंग कैसे देंगे? एंगल बी ए सी और एंगल सी ए बी.
यहाँ पे हम लोग जब नेमिंग देते हैं ना, तो हम लोग का जो एंगल जिस वर्टेक्स पे है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, और वर्टेक्स के बगल में हम लोग जो लिखते हैं वो हमारे साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स। ओके, सो एंगल ए हमारा वर्टेक्स था तो इसको हमने बीच में रखा है, एंड बाकी के दोनों आपके एडजेसेंट साइड्स हैं। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दैट इज एंगल ए सी बी, और एंगल बी सी ए। नेक्स्ट, डैश इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, दैट इज दिस एंगल, प्लस एंगल ए बी सी, दैट इज दिस एंगल। तो ये दोनों हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला। ओके, सो यहाँ पे होगा एंगल ए सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड आउट एंगल वाई आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू। तो ये हमारा फिगर है, यहाँ पे हम लोग को वाई आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल, एंड एंगल पी आर क्यू यानी कि ये वाले एंगल को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एंगल वाई आर क्यू निकालेंगे। वी विल राइट एंगल वाई आर क्यू इज इक्वल्स टू, तो वाई आर क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सटीरियर है, इसका हम लोग इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को छोड़ देंगे, बाकी के एंगल्स हमारे इंटीरियर ऑपोजिट हैं, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू। और ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। ये रीजन को ब्रैकेट में लिखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ फॉरगेट मत कीजिएगा। सो एंगल पी का वैल्यू इज 60 प्लस एंगल क्यू का वैल्यू इज 70। सो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर 130। सो एंगल वाई आर क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल पी आर क्यू। नाउ ध्यान से अगर हम लोग इस लाइन को देखें, दैट इज पी वाई, अगर साइड को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये एक आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री फॉर्म होता है। ओके, सो हम लोग को ये वाले एंगल का वैल्यू पता है, तो हम लोग ये वाले एंगल का आराम से निकाल लेंगे। वी विल राइट पी आर वाई माइनस एंगल वाई आर क्यू। इसको हम लोग लीनियर पेयर का रीजन दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, पी आर वाई इज 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो 180 डिग्री होते हैं, एंड वाई आर क्यू हमने निकाला था 130 डिग्री। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेजर्स 150 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले फिगर बनाना होगा। आप लोग पेंसिल से बनाना फिगर, एंड कॉपी के राइट साइड में ही फिगर को बनाना। सो यहाँ पे बोला गया वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 150, तो हमने यहाँ पर बना लिया 150 डिग्री। वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज 75। नाउ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये एक्सटीरियर है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी के दोनों हैं हमारे इंटीरियर ऑपोजिट। तो एक एंगल हम लोग को गिवन है 75, आप इसको भी ले सकते हो, आप इसको भी ले सकते हो। हमने यहाँ पर 75 इसको अज्यूम कर लिया। देन फाइंड द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। तो हम लोग को दूसरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को डिटरमाइन आउट करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हम लोग ब्रैकेट में रीजन देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मार्क्स कैरी करते हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं फॉरगेट कर सकते। नाउ ए सी डी का वैल्यू हमारा 150 है, एंगल ए हम लोग को नहीं पता, एंगल बी का वैल्यू 75 डिग्री है। नाउ एंगल ए इक्वल्स टू 150 माइनस 75, सो दिस विल बिकम 75 डिग्री। यहाँ पर हमने 150 माइनस 75 कैसे किया, ए को हम लोग एक साइड रखेंगे, ये 75 दूसरी साइड चला जाएगा, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यानी कि लीनियर इक्वेशन की तरह हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू 75 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये भी 75 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स इक्वल हैं। तो जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो येस ऑफ कोर्स द ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, यानी कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, बिकॉज आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो साइड्स एंड दो एंगल्स इक्वल होते हैं। सो वी विल राइट देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Next question number 4. One of the exterior angle of a triangle is 100 degree. The interior opposite angles are equal to each other. Find the measure of these equal interior opposite angles. तो हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेंगे. As you wish, you can name your triangle. So exterior angle is 100 degree. Now interior opposite angles जो हैं वो equal हैं. Okay, so these two angles are equal. Now we will write in triangle ABC, angle ACD equals to angle A plus angle B. By exterior angle property we will write the reason. Now angle ACD is 100 degree equals to angle A and angle B दोनों equal हैं, यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम होगा. So we can write 2 angle A और 2 angle B whatever. Angle A equals to 100 by 2. 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. So ये हमारा 50 आ जाएगा. Implies that A equals to 50 degree. So अगर A 50 है तो B भी 50 होगा, because both the angles are equal. So we will write therefore equal angles are 50 degree each. Question number 5. In a triangle, one of the exterior angle is 105, one of the interior
ऑपोजिट एंगल इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर हम लोग को सारे एंगल्स को डिटरमाइन आउट करना है। इस बार हम लोग PQR देते हैं नेमिंग। द एक्सटीरियर एंगल इज गिवन टू अस 105 डिग्री। वन ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दो हैं यहाँ पे, तो एक का मेजरमेंट है 75 डिग्री, दूसरा और तीसरा एंगल ऑफ द ट्राइंगल को हम लोग को डिटरमाइन करना है। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल PQR, एंगल PRS इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल Q by exterior angle property. So angle PRS is of measurement 105 degree, angle P we don't know, and angle Q is equals to 75 degree. So angle P is equals to 105 minus 75 degree. So this will become 30 degree. Now यहाँ पर हम लोग को थर्ड एंगल को भी डिटरमाइन करना है. So we will write angle PRS. So हम लोग को R निकालना है, तो इसका R हमारा वर्टेक्स है, उसको हमने बीच में रखा, एंड अगल बगल में एडजेसेंट साइड्स. सो PRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 105. यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर यूज़ कर रहे हैं, सो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 डिग्री. अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 75 डिग्री. लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट 1. इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ. यहाँ पर हम लोगों को एंगल PRQ को डिटरमाइन करना है, यानी कि इस एंगल को डिटरमाइन करना है. यहाँ पर देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, इट शोज दैट इट इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर आपका मेजरमेंट 90 डिग्री है. ओके, सो वी विल राइट इन ट्राइंगल PQR, एंगल RQ, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप S दे दो. सो RQS इज इक्वल्स टू एंगल R प्लस एंगल P बाय यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. यहाँ पर हम लोग को ट्रायंगल का नेमिंग बहुत प्रॉपरली देना है और एंगल का नेमिंग को भी बहुत अच्छे से देना है. अगर हम लोग का एंगल का नेमिंग गलत होगा तो हमारा डिफरेंट ही एंगल बन जाएगा और मार्क्स भी कट हो जाएंगे. So if you have any doubt how to name the triangle or how to name the angle, then please comment so that I can make a video on that topic also. Otherwise we will continue this chapter. So over here we will write RQS का value है हमारा 140 degree equals to angle R we don't know and angle P is 90 degree. Angle R is equals to, so angle R को हम लोग PRQ भी लिख सकते हैं. R vertex है और P and Q adjacent sides के हैं name. So angle R is equals to 140 minus 90. So this will become 50 degree. Angle PRQ is equals to 50 degree. So this was all in today's session. I hope the video was helpful to you. If it was, please hit the like button and share and subscribe to the channel. Thank you.